Okay, now welcome back, children, to the third part of the chapter. So, the name of the chapter is in Internet. Okay, now today's topic is about the advantages and disadvantages of the Internet. So, yesterday we taught about the uses of Internet. After uses, we have to know about the advantages and disadvantages. That means कि इंटरनेट के कुछ advantages भी हैं और कुछ disadvantages हैं, so we have to know about them. Okay, so now first of thing, that is advantages of the internet. that means कि advantage किस किस जगह पे है इंटरनेट में. ठीक है, इंटरनेट का यूज़ क्यों करना चाहिए, उससे हमें क्या हेल्प मिल रही है. ओके, so the first one, that is faster communication. that means कि अगर हम किसी से communication कर रहे हैं तो that will be in a very instantly. Okay, so the first one is the internet has made communication easy and faster. कि जो इंटरनेट है वो हमारे कम्युनिकेशन को ईजी और फास्ट कर देता है. ठीक है, एंड पीपल लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस कैन टॉक टू ईच अदर इंस्टेंटली. दैट मीन्स कि जो पीपल्स डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर instant and fast. Okay, and as the internet provides different services like email, chatting, Skype, and many more things about the social networking websites like Facebook, Google Plus, LinkedIn, etc. with these help of with these websites with the help of these websites, we can communicate with each other and we can take the faster communication instantly. Now come to on the second one, that is abundant information. That means uh, more than enough or in existing things in the bigger in many quantity, in the large quantity. Okay, so a lot of information can be taken on any topic of our interest through the internet, and this is possible with the help of the various search engines used by the internet users. Okay, so children, एबडेंट इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से एक लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द some search engines like your Google, your Bing. Okay, there are some search engines are given and we can take the help of these engines, we can collect some information. Now the third one is, that is easy sharing. What do you mean by easy sharing? Now children, with the help of this internet, the third advantage of the internet is easy sharing. That is, we can share anything from the computer to each other from the different places. It is in a very easier manner. Okay, now the internet not only give us the facility to gain all types of information. Okay, क्या बता रहा है कि इंटरनेट सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए नहीं, बल्कि हम को ये फैसिलिटी भी देता है कि हम कुछ इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को सेम टाइम पे से डिफरेंट प्लेसेस पे भी शेयर कर सकते हैं. ठीक है, दैट फॉर टेक द एग्जांपल, इफ यू आर here and your friend in the another city, so how you can communicate, how you can share your information, so you can take the help of the internet, and that is it is very easy to share your information with each other. Okay, now the third one is online services and e-commerce. ओके, ऑनलाइन की कुछ सर्विसेज हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था. कुछ ऑनलाइन यूजेस हैं जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो ऑनलाइन सर्विसेज और ई कॉमर्स में क्या बता रहे हैं कि हम कुछ मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स भी ऑनलाइन कर सकते हैं. with the help of this internet, we can transfer funds, we can book some tickets. Okay, like your railway tickets, air tickets, and you can also book your movies ticket for the movie, and you can also
make a shop, you can also make a shopping online and much more thing. ओके, सो ऑनलाइन सर्विसेज में क्या है कि आप इंटरनेट की हेल्प से आप शॉपिंग कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, कहीं भी आपको ट्रेवल करना है, आप उस एयर टिकट या रेलवे टिकट बुक करना चाहें तो भी कर सकते हैं, एंड सेम एज वेल एज यू कैन ट्रांसफ़र सम मनी टू ईच अदर. नाउ द लास्ट और अ फिफ्थ advantage of the internet is cost saving. Now cost saving क्या हुआ, the users connected through a internet network, they are able to share hardware like printers, scanners, modems, etc. So this cuts the cost of hardware, making it easy to purchase. ओके, कॉस्ट सेविंग से क्या हुआ कि हमारी कुछ जो कॉस्ट है कुछ हार्डवेयर्स की, ठीक है, उनको कट कर दिया. क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये ईजी हो गया परचेज करने के लिए, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट. ठीक है, सो these are some advantages of internet. The first one is the faster communication, second that is evident information, third that is easy sharing, fourth that is online services and e-commerce. ई कॉमर्स का मतलब हुआ कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम ऑनलाइन करते हैं, जब आप टिकट बुक करते हैं तब भी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, आपको पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो भी आपका ई कॉमर्स में आ जाएगा. सेम एज वेल एज इफ़ यू व्हेन यू आर बाइंग एनीथिंग ऑनलाइन, वहाँ पे भी आपको कुछ मनी ट्रांसफ़र करना पड़ता है. तो दीज आर कम in this e-commerce category. Okay, now and the fifth one is cost saving. तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं. और भी एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. यू कैन राइट इन योर कॉपी एक्सेप्ट दीज 5. नाउ कम टू ऑन द सेकेंड, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट. अभी तक हम एडवांटेज पढ़ रहे थे. एडवांटेज का मतलब कि जो हमारे लिए अच्छा हो या फिर इंटरनेट हमारी किन किन चीज़ों में हेल्प करता है. अब आता है डिसएडवांटेज. अगर किसी चीज़ की एडवांटेज है चिल्ड्रेंस, तो उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज ज़रूर होंगे. ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज के लिए ही हो. ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या होंगे, जस्ट हैव अ लुक. वायरस थ्रेट्स. वायरस थ्रेट्स का मतलब आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ सकते हैं विद ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट. ठीक है, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू कई फाइल्स कई वेबसाइट पे सर्च करते हैं, कहीं से भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ कुछ साइबर वायरसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स को वायरल कर सकते हैं. तो ये होते हैं कुछ वायरस थ्रेट्स. सो कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन बी अटैक्ड बाय द वायरस. जैसे हमारी लाइफ में वायरस होते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारी डिसीजेज़ हैं जो वायरस से होती हैं. सबसे बड़ा वायरस इस समय क्या है, यो कोविड-19, यो कोरोना वायरस, जो हमारी पूरी लाइफ पे अटैक कर रही है. ठीक है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स पे भी कुछ वायरसेस अटैक करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वायरस थ्रेट्स. और इनका क्या रिजल्ट होता है इन वायरसेस का, जो हमारे लाइफ में वायरस का अटैक होता है उसमें क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं. सम पीपल्स में डाई, सम पीपल्स में इंजर्ड and they suffered with that diseases. But just like these virus, your computers can also attacked by some virus. तो वहाँ पे क्या रिजल्ट होगा इन वायरस का कि आपके डेटा लॉस हो सकते हैं. आपके जो कंप्यूटर के जो डेटाज हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा हैं, दे कैन लॉस, इट कैन बी लॉस्ट. ओके, नाउ सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन थेफ्ट. थेफ्ट का मतलब होता है चोरी. ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन की चोरी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ द नॉट हेल्प,
जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट, बिकॉज बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो आपके इंफॉर्मेशन या आपके पूरे कंप्यूटर को ही हैक कर लेते हैं, ठीक है. सो द इंफॉर्मेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट इज़ नॉट फुल्ली सिक्योर एंड कैन बी स्टोलन बाय पीपल विद द बैड इंटेंशंस. कुछ पीपल्स के जो बैड इंटेंशंस होते हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन अपने इंटरनेट पे शेयर करते हैं उसे वो थेफ्ट कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं. ओके, एंड द यूजर शुड टेक केयर वाइल शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स डिटेल्स, पासवर्ड एक्सेट्रा. बहुत सारे हैकर्स ऐसे हैं कि जो आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जो पिन्स हैं या फिर आपका कोई पासवर्ड है उसको तुरंत हैक कर सकते हैं, ठीक है. तो हमें इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डालने से पहले वी हैव टू मेक अवर कंप्यूटर वायरस फ्री. ओके, नाउ फास्ट स्प्रेडिंग ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. क्या हो गया कि बहुत जल्दी कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होने लगती हैं. लाइक समटाइम्स द इंफॉर्मेशन पोस्टेड ऑन इंटरनेट इज रॉन्ग एंड मिसबिहेविंग, बट इट स्प्रेड्स एट वेरी फास्ट स्पीड लीडिंग टू प्रॉब्लम्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. फास्ट स्प्रेडिंग से का क्या मतलब हुआ कि कई बार इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे हम पोस्ट करते हैं वो रॉन्ग होते हैं, मिसलीड हो जाती हैं, ठीक है. तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होगा. एंड द लास्ट वन दैट इज स्पैम. स्पैम इज द मैनी टाइम्स यूजर्स गेट अनवांटेड एंड अननेसेसरी सोशल एंड एडवर्टीजमेंट ईमेल्स, सो नोन एज ए स्पैम. कि बहुत सारी इंटरनेट पे जब आप काम करते हैं तो बहुत से अनवांटेड ईमेल्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, ठीक है. तो जो उसको हम कहते हैं स्पैम. सो स्पैम स्लोज डाउन द सिस्टम एंड कैन ऑल्सो कंटेन द वायरस विच में हार्म यूजफुल डेटा ऑफ द यूजर्स. तो ये जो स्पैम्स होते हैं इसमें वायरसेस हो सकते हैं जो आपके सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, कि आपका जो सिस्टम है वो वर्क करना स्लो कर दे या फिर आपके डेटा को हार्म कर दे. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट. सो देयर आर टू थिंग्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. So keep study and thank you. Have a nice day.